Assalamu alaikum, dear friends. We continue our discussion on some fundamental concepts and definitions in probability. So आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि random variable क्या है. We will try to see formally what a random variable means. तो अगर एक लूजली हम देखें कॉमन सेंस लेवल पे, तो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करे. ठीक है. सो हाउ वी फॉर्मलाइज दिस डेफिनेशन. हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके साथ जो एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस है वो एस है. तो एस क्या है? एस कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जो मेंबर्स ऑफ एस हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं. अब अगर एलिमेंट्री इवेंट से सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स के साथ एक फंक्शन हम एसोसिएट करें, एक मैपिंग एसोसिएट करें विच मैप्स every element of S to some real number. ठीक है. Then this will be called, then the underlying variable will be called a random variable. Okay. So ये one dimensional random variable हुआ. तो n dimensional random variable क्या होगा? n dimensional random variable sample space से एक point लेगा and it will assign to it some vector in the Euclidean space Rn. Now I think a couple of examples will illustrate it. जैसे कि आपके पास जो है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन ट्वाइस. तो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो ये है हेड टेल टेल हेड टेल टेल. ओके. Now this is your S. Now you have to define some variable, some number. Let x be the number which gives us the number of heads. अब ये देखिए कि हम इसको एज ए फंक्शन कैसे कंसिडर कर सकते हैं. You can define a function that assigns to every, let E belongs to S and f of E equal to number of heads in E. E क्या है? E ये है, ये है, ये है, ये है, कोई भी एलिमेंट्री इवेंट है. तो अब आप f ऑफ h क्या होगा इसके हिसाब से? तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ 2 होगी, f ऑफ ht वो 1 होगी, f ऑफ th वो भी 1 होगा, th नंबर ऑफ हेड्स इसमें 1 है, एंड f ऑफ tt equal to, that's equal to 0. So now you have this function correspondence like this. आपके पास ये है head 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 tail 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 head. Here this is a function. ये जो x है, this is a function which maps h to 2. This maps ht to 1 and th is also mapped to 1 and tt is mapped to 0. So ये जो x है, number of heads, it can be considered a function with domain this as samples, with domain d this which is the sample space and range this. So it's a function. X becomes a function from the set h t t t th to the set 0 1 2. Okay. अब you can convince yourself that this is indeed a function. जो भी function की requirements है कि किसी भी point की, किसी भी element की mapping है, unique है. There might be one element which is an image of two or more elements, but that's not an issue. ये है कि एक ही एलिमेंट को 2 पॉइंट्स असाइन नहीं होने चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है. सो दैट्स अ फंक्शन. सो इन जनरल you can have a random experiment, or you can then you can define a number associated with every point of the sample space such that the number can be considered as a function from the sample space to the set of real numbers. ठीक है. तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है. आप एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं
आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 0 1. ओके, यू टेक ए पॉइंट एट रैंडम, लेट्स से ये तो ये इसका नाम देंगे हम ओ ए. दिस ओ ए इज ऑफ लेंथ 1. ठीक है, अब आप एक पॉइंट ले रहे हैं रैंडमली पी. तो अगर आप ओ पी को एक्स लें, टेल मी हाउ कैन यू डिफाइन एक्स एज अ रैंडम, एज अ फंक्शन. ठीक है, इन द सेंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. तो पहले तो ये देखना है आपको कि यहाँ पे जो है अंडरलाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है. वो ये है कि आप एक रैंडम पॉइंट चूज कर रहे हो. तो वो रैंडम पॉइंट चूज करने से कौन सा नंबर जनरेट होता है. वो जनरेट होता है x विच इज़ द लेंथ ऑफ द रैंडम पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक नंबर नहीं है. आपको डिफाइन करना होगा उस पर कुछ चीज़ जो काउंट कर सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तभी रैंडम वेरिएबल की हम बात कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू सिंपली throw a coin twice, there is no random variable involved unless we define something like x to be the number of heads, or the number of tails, or the number of heads before the first tail, or the number of tails before the first head, or the number of heads before the first tail appears. So you can define it you can define many types of random variables on for a single random experiment. तो वो जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल दी, ये वाली एग्जांपल ये डिस्क्रीट एग्जांपल है. ठीक है, नाउ हियर यू हैव एन एग्जांपल ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे. मतलब फिलहाल आप ये इतना याद रखें कि जो डिस्क्रीट है इट टेक्स वैल्यूज विद सम गैप्स, विद सम जंप्स. ठीक है, वो जंप्स फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं. मतलब वो नंबर ऑफ जो फॉरबिडन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया भी एग्जांपल कि अगर एक बैट्समैन की एवरेज की रन्स की टोटल स्कोर की आप बात करें इन सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इट कैन नॉट टेक द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय बैट्समैन in certain number of matches. It cannot be, for instance, 12.5, although the average can be 12.5. But again, the average cannot be irrational. So again, even the average is not a continuous variable. अब कोई variable जो continuous भी हो, random भी हो, उसको continuous random variable बोलेंगे. और जो discrete, I think it's sufficiently clear. हमने कई बार ये डिस्कस किया है. डिस्क्रीट अगर कोई वेरिएबल एक इंटरवल में वैल्यू लेता है, वो इंटरवल फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, देन इट्स कंटिन्यूअस, सिंपल. अगर वो इसको छोड़ के किसी भी तरीके में वैल्यू लेता है, मतलब इंटरवल में ही वैल्यू लेता है बट विद सम फॉरबिडन वैल्यूज, तब भी वो डिस्क्रीट माना जाएगा. ठीक है, अगर या इफ इट टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज, ऑब्वियसली इवन इन दैट केस इट्स डिस्क्रीट. ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल कि यहाँ पे ये है ओ ए एक लाइन सेगमेंट है, पी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि रैंडम पॉइंट चूज करना, एंड देन यू डिफाइन ओ पी टू बी द डिस्टेंस ऑफ द रैंडम पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. सो ऑब्वियसली जो एक्स है इट विल लाई बिटवीन 0 and 1, बट विद इट्स अ रैंडम वेरिएबल. सो ऑन एनी परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम ये नहीं कह सकते कि प्रिडिक्ट कर सकते कि एक्स की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, लेकिन एक्स कैन टेक पॉसिबली ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. So here x is a continuous random variable. ठीक है, okay, we will continue our discussion in the next video.